आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इस चैप्टर में इस टॉपिक में आज हम लोग जानेंगे कैपिटल जी के बारे में। वी विल नो अबाउट कैपिटल जी एंड बिफोर इट वी हैव स्टडीड अबाउट यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। In that we know that the formula of gravitational force acting between two masses is given by F is equal to G m1 m2 by r square. This formula is given by universal law of gravitation, that is when two masses are placed at a distance r, then the force acting between them two objects is equal to capital G m1 m2 by r square. This is the formula of force when two objects are placed at some distances, yeah, it's separated by some distance r. Then this formula is used. Here in this formula, some constant term is used, that is a capital G. The name of capital G is universal gravitational constant. We will know about this term capital G. How can you define the universal gravitational constant और कैसे जानेंगे कि ये क्या है, कैपिटल G क्या है, इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बात देखिए यहाँ पे यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन से जो लोग पढ़े थे F is equal to G m1 m2 by r square. This is the formula obtained from the यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अगर इसको हम फॉर्मूले को रोटेट करें, इसको घुमाएं, देखिए तो कैसे आ जाएगा। तो ये g को हम लोग यहाँ पे अगर लिखते हैं वैसे, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, इसको यहाँ पे हम लोग 1 मान लें, क्रॉस करेंगे इसको ऐसे और ये ऐसे, तो ये दिस इनटू 1 क्या आ जाएगा, ये g m1 m2 और दिस इनटू दिस, व्हाट इज दिस, f r square. After that, the capital G is equal to f r square by m1 m2. This is the formula जो भी यहाँ मैंने लिखा है। तो कैपिटल G का बराबर कितना आ रहा है, f r square by m1 m2। अब अगर हम यहाँ पे r को 1 मीटर मानते हैं, means when two objects are separated by distance 1 meter, how much distance, 1 meter, and masses of this m1 and m2 is equal to 1 kg, means two objects having masses 1 kg and distance between them is 1 meter. Then what will be the value of this capital G after putting the given data, that is r is equal to 1, f r का value 1, putting here 1, okay, square. The value of m1 m2 is 1 kg, m1 1 m2 is 1 का स्क्वायर 1 into 1, so simply G is equal to F. Here capital G, that means universal gravitational constant, is equal to force. Which force? This force is called gravitational force. The universal gravitational constant is equal to gravitational force when the two objects of masses 1 kg and distance between them is 1 meter. Then we can define the universal gravitational constant in this way. The gravitational constant is numerically equal to gravitational force acting between two objects of unit masses and separated by unit distance from each other. मतलब इस यहाँ पे जो G is equal to F है वो इक्वल तो है, लेकिन न्यूमेरिकली इक्वल बोल रहे हैं, क्यों, क्योंकि दोनों का यूनिट क्या है, अलग अलग। जैसे फोर्स का यूनिट कितना होता है, न्यूटन, जबकि G का यूनिट कितना होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। देयरफॉर द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, दैट मींस G इज न्यूमेरिकली सिर्फ नंबर का, मतलब कि जितना फोर्स होगा, मान लेते हैं कुछ भी फोर्स काम करेगा, जो भी वो फोर्स है वो कैपिटल G के बराबर होगा, और वो फोर्स जो होता है वो इतना होता है 6.67 10 to the power -11। यहाँ पे सुनिए क्या बोलना चाह रहे हैं,
जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है इज न्यूमेरिकली इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स, इसके बराबर है। लेकिन कब ऐसा होता है, between gravitational force acting between two objects of unit masses and separated by unit distance from each other। अगर हम लोग जो ये कैपिटल G है वो एक्चुअल में क्या है, एक फोर्स है, ये फोर्स के बराबर होता है, कैपिटल G फोर्स के बराबर होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर होता है। लेकिन ये फोर्स कब, जितना फोर्स दो ऑब्जेक्ट के बीच में काम करेगा और उस दोनों ऑब्जेक्ट का मास 1 kg 1 kg, अगर दो ऑब्जेक्ट 1 kg का ऑब्जेक्ट 1 मीटर के डिस्टेंस में रखा हुआ रहेगा, ठीक है, तो उस केस में जितना फोर्स काम करेगा, अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा, उसी वैल्यू को हम लोग कैपिटल G का वैल्यू को मानते हैं। एक्चुअल में कैपिटल G है क्या चीज है, तो ये कुल मिला के फोर्स ही है। लेकिन वो कौन सा फोर्स है, whenever two objects having masses 1 are separated by distance 1 meter, then the force acting between them is considered as a capital G। यहाँ पे लिखे हैं कुछ को, it is numerically equal to force acting between two unit masses, दो यूनिट मासेस के बीच में लगने वाला फोर्स के बराबर होता है, प्लेस्ड एट यूनिट डिस्टेंस, कितना दूरी में रखा होना चाहिए, 1 मीटर के बीच में रखा होना चाहिए। एक बार फिर मैं वो बोल दे रहा हूँ, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है वो एक्चुअल में फोर्स के बराबर होता है। कौन सा फोर्स के बराबर होता है, वह फोर्स जो दो ऑब्जेक्ट के बीच में काम करेगा, दोनों ऑब्जेक्ट का मासेस कितना होगा 1 kg एंड 1 kg, और दोनों एक दूसरे से कितना डिस्टेंस पे रखा होगा, 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखा होगा। The SI unit of G is Newton meter square per kg square। How can you determine this unit? ऐसे देखिए इसका यूनिट कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, यहाँ से देखिएगा, the unit of force Newton, the unit of distance meter square, the unit of mass kg, बाई में है ना बट्टा में kg, and second also kg, therefore we can write this Newton meter square, this by is equal to ऐसे kg into kg square। so this is the unit of capital G, universal gravitational constant। ये होता है SI यूनिट कैपिटल G का, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का ये यूनिट होता है। the value of G is this 6.67 10 to the -11 Newton meters per kg square। this value is calculated by Henry Cavendish। the value of G was found out by Henry Cavendish। ये वैल्यू को न्यूटन के द्वारा भी ज्ञात नहीं किया गया था। न्यूटन ने कहा था कि हाँ ये कैपिटल G इसमें आएगा, लेकिन उसका वैल्यू को फाइंड किया था कौन, हेनरी कैवेंडिश ने। कौन किया था फाइंड, हेनरी कैवेंडिश। हेनरी कैवेंडिश एक अपना एक्सपेरिमेंट के आधार पे इस दोनों मासेस के बीच में फोर्स निकाला था और देखा कितना इसका वैल्यू आता है, तो 6.67 10 to the -11। ये वैल्यू बहुत कम है, -11 है, कितना पावर है, -11, तो पावर इज इक्वल टू -11, मतलब बहुत कम इसका वैल्यू होता है। मतलब जब कभी भी दो ऑब्जेक्ट को हम लोग एक यूनिट डिस्टेंस में 1 kg के ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो उसके बीच में फोर्स बहुत ही इतना फोर्स लगता है। The value of G never change anywhere। जो कैपिटल G का वैल्यू है वो कहीं भी चेंज नहीं होगा, चाहे वो प्लेन पे रखो, वाटर में रखो, स्पेस में रखो, वैक्यूम में रखो, कहीं भी ये वैल्यू चेंज नहीं, मतलब हर जगह पे ये वैल्यू इतना ही। कैपिटल G का वैल्यू कभी किसी पर डिपेंड नहीं करता है, ये वैल्यू ऑलवेज इतना ही होता है। चाहे वो दो ऑब्जेक्ट, मान लेते हैं कि ऐसे लोग बोलते हैं कि whenever two objects are placed in water, 1 kg placed in the water, then the value of G, so the value of G is always same। this system is placed in the air, then what is the value of G, तो same। कहीं भी रखोगे तो कैपिटल G का वैल्यू किसी पर भी डिपेंड नहीं करता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका आंसर सीधा है ये इंडिपेंडेंट है, ये किसी भी चीजों पर डिपेंड नहीं करता है। कौन, कैपिटल G। एनीवे
देखा, इट डज नॉट डिपेंड ऑन एनी फैक्टर, ये किसी फैक्टर पर डिपेंड नहीं करता है। इट्स वैल्यू इज ऑलवेज कांस्टेंट एवरीवेयर, इसका वैल्यू हमेशा इतना ही होता है, चाहे जहां भी हो, इसका वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होता है, हर जगह इसका वैल्यू यही होता है, कांस्टेंट होता है। द सीजीएस यूनिट ऑफ कैपिटल जी, सीजीएस का सॉरी, इस सीजीएस का मतलब क्या होता है, जैसे कि हम लोग जब एसआई लिखते हैं तो एसआई में मास को मेजरमेंट करते हैं किलोग्राम में, लेंथ को मापते हैं मीटर में, टाइम को मापते हैं सेकंड में। यहाँ पे सीजीएस में इसको फुल फॉर्म बोलते हैं सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, ग्राम एंड watt second means when the distance is measured in centimeter, mass is measured in gram, time is measured in second, then that unit is called CGS units. And here the CGS unit of capital G is dyne centimeter. Simple सी बात है, न्यूटन डाइन, मीटर सेंटीमीटर, किलोग्राम ग्राम. It is converted into Celsius unit system. This is all about the universal gravitational constant. Universal gravitational constant क्या होता है? तो this is the force acting between two unit masses placed at unit distance. Okay, and the value of capital G is never change anywhere. ये कहीं पर भी change नहीं होता है, ये हमेशा क्या होता है? Constant होता है, ठीक है ना? Always, ये कभी भी चेंज नहीं होता है। द वैल्यू ऑफ जी इज एट फर्स्ट कैलकुलेटेड बाय हेनरी कैवेंडिश। So this is the all about the universal gravitational constant. Okay, कुछ डाउट होगा तो व्हाट्सएप नंबर में आप मुझे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक्स।